Hi everyone, welcome back. I'm Shilpi and today we are going to continue the chapter The Triangle and its Properties. So today we are going to study about the famous Pythagoras theorem. But before coming to that theorem, let us see something about Pythagoras. So Pythagoras was a Greek mathematician and he appears to have been the son of Menisacus, a gem engraver on the island of Samos. So that's why, because of this name Samos, Pythagoras is also known as Pythagoras of Samos. And the Pythagoreans believed that all things were made of numbers. हर चीज़ जो है वो नंबर से बनी है, नंबर से, mathematical equation से most of the things are connected. So according to Pythagoreans, they believed that the number 1 represented the origin of everything, origin of all the things, right? And the number 2 represents the matter. Number 3 is an ideal number. Number 3 को ideal number बोलते थे. Why? Because it was the smallest number of points that could be used to define a plane triangle. किसी भी triangle को या smallest close figure बनाने के लिए the minimum number of points required is 3, and which they reverted as a symbol of god Apollo. So in the same way, they believe that number 4 represents the 4 seasons and number 7 represents all the planets. Okay, let's come back to the topic. So here I have made a right angle triangle, and Pythagoras theorem is all related to right angle triangle. It is all about right angle triangle. So this is a right angle triangle, right angled at B. This is right angled or 90 degree. So the side which is just opposite to this right angle, इस right angle के सामने जो side है, this AC, this is known as the hypotenuse of that right angled triangle. So this is the hypotenuse. So in this case, AC is the hypotenuse. And the remaining two sides that contain the 90 degree, जो two sides इस 90 degree को contain करे, 90 degree बना रही है, these two sides are called the legs of the right angle triangle. So this AB and BC, which contains this right angle, these two are the legs of this triangle. तो यहाँ पर legs कौन से हो गए? AB and BC. Okay, then these are also known as base and perpendicular. One of them is treated as base and the other one as perpendicular. तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं? सपोज अब ये ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल इज स्टैंडिंग ऑन BC. ये ट्रायंगल देखो BC के ऊपर खड़ा हुआ है, BC इज द बेस. सो हेयर द बेस इज BC एंड द परपेंडिकुलर इज AB. ओके, अगर इसी ट्रायंगल को मैं ऐसे रख दूँ, लाइक दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज C, मैंने इसको घुमा दिया, ठीक है. सो नाउ दिस ट्रायंगल इज स्टैंडिंग ऑन विच लेग? It's standing on AB. So now in this case the base will be AB and the perpendicular will be BC, and these two are legs of the triangle. Okay, now let us come to the theorem. It is basically known as Pythagorean theorem, but India it is most commonly known as Pythagoras theorem. So what it states, the square of the longest side is missing here. The square of the longest side of a right angle triangle is equal to the sum of squares of other two sides. यानी कि longest side, अच्छा triangle की right angle triangle में longest side कौन सी होती है? Obviously hypotenuse. Hypotenuse is the longest side of a right angled triangle. तो ये बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि ये मैंने यहाँ जो ट्राइंगल लिया है, हेयर द लॉन्गेस्ट साइड इज C. दैट मीन्स C स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी बाकी दो साइड्स कौन सी बची? A का स्क्वायर एंड B का स्क्वायर. This is the Pythagoras theorem, or in other words you can say that in a right angle triangle
द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टू लेग्स. So sum of squares of two legs. What are the two legs here? A and B. So it is equals to A square plus B square. This is the Pythagoras theorem. So this theorem we will be using in word problems. It has many applications. Then Pythagorean triplets. अब Pythagorean triplets क्या होते हैं? Suppose if you consider three positive integers A, B and C. Positive integers हमने यहाँ ले लिए A, B and C. It is said to form a Pythagorean triplet if C square is equals to A square plus B square. अगर ये condition satisfy कर रही है then A, B and C forms a Pythagorean triplet. तो इसको हम represent कैसे करते हैं? We write these numbers in these braces in ascending order. So here some examples are given like 3, 4 and 5. So you can check here that the last number, that is C, you can check the square of 5, that is 25, and the squares of first two numbers 3 square and 4 square, इसका सम निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, दैट इज इक्वल्स टू 25. तो पहले दो नंबर के स्क्वायर्स का सम थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स इट फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इसी तरह से इफ़ यू चेक हेयर देन यू विल फाइंड 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, है ना. इन द सेम वे 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 25. 8 square plus 15 square is equal to square of 17. So these are forming Pythagorean triplets. And don't forget to put the commas between these numbers in a Pythagorean triplet. तीनों numbers के बीच में we put a comma. So moving on to the questions now. Yeah, first one, find the unknown length in the figure. This figure is given. First two questions I have already solved because it's just a basic question, so I don't think I need to show you everything step by step writing over there. So here this triangle is given and we have to find the value of x here. Hypotenuse is given and this base is given. So according to Pythagoras theorem, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी स्क्वायर ऑफ x and 4. We got 25 is equals to 16 plus x square. Solving this we get the value of x which is 3 centimeter. Similarly in the second question, identify the Pythagorean triplet from the following. यहाँ हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. तो फर्स्ट वन हमने क्या करा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए कंडीशन क्या होती है, पहले दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल होना चाहिए थर्ड नंबर के स्क्वायर के. तो हमने पहले दो नंबर के स्क्वायर का सम निकाला, वो कितना आया 625. फिर हमने थर्ड नंबर का स्क्वायर निकाला विच इज़ ऑल्सो 625. सो बोथ आर इक्वल, इक्वल आ रहे हैं, सेटिस्फाई करे कंडीशन, दैट मीन्स येस इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. नाउ इन द सेकेंड पार्ट अगेन, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स दैट इज़ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हमने निकाला, ये आया 41. फिर हमने थर्ड नंबर का स्क्वायर निकाला दैट इज़ 7 का स्क्वायर विच इज़ 49, जो कि इक्वल नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. सो जस्ट यू हैव टू चेक द कंडीशन कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ क्या दिया है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 3.6 सेंटीमीटर. ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल की सीधी साइड ले ली, and because it is rectangle तो obviously all the angles are 90 degree of rectangle. तो ये 3.6 ले ली, एंड एडजेसेंट साइड है तो इसके साथ वाली साइड BC मैंने ले ली 1.5 सेंटीमीटर एज गिवन इन द क्वेश्चन. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल. तो डायगोनल मैंने यहाँ पे ले लिया x.
ओके, नाउ यू कैन सी कि ये जो डायगोनल है रेक्टेंगल का, इट इज़ डिवाइडिंग द रेक्टेंगल इन टू ट्राइंगल्स. तो इस ट्राइंगल को मैंने कंसिडर करा, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इन द राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? x. तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टू लेग्स. तो बाकी दोनों लेग्स कौन से हैं इसके? 1.5. तो 1.5 का स्क्वायर प्लस दूसरी लेग कौन सी है इसकी? 3.6. तो 3.6 का स्क्वायर. तो ये आ गया x का स्क्वायर. 1.5 इंटू 1.5 इसका स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा 2.25 प्लस 3.6 का स्क्वायर हमने निकाला, ये आ गया 12.96. नाउ वी हैव टू ऐड देम. तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15.21. इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू square root of 15.21. This is approximately 3.9 centimeter answer. Okay, so therefore just writing the ending statements here, this is the answer, but we have to write the ending statement. So therefore the diagonal of the rectangle is of 3.9 centimeter. This is the answer statement. So next question. Now ABC is an isosceles triangle right angled at C. ये एक isosceles triangle दे रखा है, यानी इसके टू साइड्स इक्वल होंगे. तो कौन से टू साइड्स इक्वल होंगे? ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज. तो क्योंकि ये लॉन्गेस्ट होती है तो हाइपोटेन्यूज किसी और के इक्वल तो नहीं होगी. दैट मीन्स जो दोनों लेग्स हैं वो इक्वल होंगे. सो दैट मीन्स AC इज इक्वल टू BC. सो हेयर व्हाट इज गिवन? ट्रायंगल ABC is isosceles right angle triangle and angle C is given 90 degree, which is right angled at angle C, right angled at C. ठीक है. So now what we have to prove? We have to prove AB square is equals to 2AC square. ये हमें prove करना है. ठीक है. Now we will prove it. So here triangle ABC is isosceles, so therefore AC is equals to BC. ये हमने ले ली equation 1. Okay, now using Pythagoras hypotenuse square. तो hypotenuse यहाँ पे क्या है? AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टू लेग्स. तो लेग्स कौन से इसके? इट इज़ BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट. तो नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC की जगह, यहाँ पर BC की जगह मैं लिख सकती हूँ AC, क्योंकि AC और BC दोनों इक्वल है, हम ये प्रूफ कर चुके हैं. सो आई एम राइटिंग हेयर AC square plus AC square. We can write the reason in the bracket from equation 1. तो ये आ गया AB square is equals to twice of AC square. यही हमें प्रूफ करना था. AC square plus AC square, that means twice of AC square. This is what we have to prove. So it is proved now. Okay, now next question. The diagonals of a rhombus are 30 centimeter and 16 centimeter. Find its perimeter. Okay, so I'm taking here a rhombus. Suppose this is a rhombus, A, B, C, D. Okay, and इसके मैंने यहाँ पर diagonals draw कर दिए, AC को ज्वाइन कर दिया और BD को ज्वाइन कर दिया. Let
दिस मीट एट पॉइंट ओ. ठीक है. नाउ डायगोनल्स आर गिवन. सो हम ले रहे हैं यहाँ पे डायगोनल. सपोज ए सी डायगोनल हमने ले लिया 30 सेंटीमीटर एंड बी डी डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर. दोनों डायगोनल्स की हमें यहाँ पे लेंथ दे रखी है. वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. ठीक है. अब यहाँ पे हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं. दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. तो पहली बात तो वो बाइसेक्ट करते हैं. तो ए ओ और ओ सी इक्वल होगा एंड बी ओ और ओ डी इक्वल होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मिड पॉइंट से पास हो रहे हैं. एंड दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री यानी कि दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो सिंस diagonals of a rhombus bisects each other at right angles. Therefore, तो यहाँ से अगर मैं बी ओ निकाल लूँ तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बी डी. बी ओ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी यानी कि हाफ ऑफ बी डी कितना है 16. ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर. इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ए ओ निकाल लूँ तो ए ओ कितना होगा. इट इज़ हाफ ऑफ ए सी. दैट मीन्स हाफ ऑफ ए सी कितना है 30. सो दिस इज़ 15 सेंटीमीटर. तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर और ये बी ओ आ गया 8 सेंटीमीटर. राइट. अब ये जो साइड है रोम्बस की वो मैंने ले ली x. सो लेट the side of rhombus be x. Now I can use Pythagoras theorem in this triangle. So using Pythagoras theorem in triangle AOB, what equation we will get? Hypotenuse यहाँ पे क्या है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, that is एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टू लेग्स. तो लेग्स में क्या है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का स्क्वायर हो गया 64. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289 एंड 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का. तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 17. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 17. ये क्या आ गई रोम्बस की साइड. सो देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर. अब साइड आ गए. रोम्बस के सारे साइड्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं. सो वी कैन फाइंड द पेरीमीटर. इट हैज़ 4 साइड्स. तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 साइड. दैट मीन्स 4 इंटू 17. दैट मीन्स 68 सेंटीमीटर. देयरफॉर पेरीमीटर इज 68 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. A tree is broken at a height of 5 मीटर. ये एक यहाँ पे ट्री शो कर रखा है और ये 5 मीटर की हाइट मतलब यहाँ तक इस पॉइंट से ये टूट जाता है. इट इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप. और इसका जो टॉप है बिल्कुल टॉप वाला पॉइंट है इट टचेस द ग्राउंड. ये पूरा गिर के ग्राउंड को टच कर रहा है. इसका टॉप कहाँ पे टच कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. ये जो ट्री का बेस है यहाँ से 12 मीटर की डिस्टेंस पे. दैट मीन्स ये पूरा हमें दे रखा है 12 मीटर. राइट. और कहाँ से ये टूटा 5 मीटर की डिस्टेंस से ग्राउंड से. सो दिस इज 5 मीटर. और जितना पोर्शन टूट के नीचे गिरा दैट वी हैव टेकन x. ओके. सो व्हाट स्टेटमेंट वी विल बी राइटिंग हियर. Let the height of broken part of the tree be x meter. Okay, now you can see this is forming a right angled
ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. सो वी कैन अप्लाई द Pythagoras theorem here. So when we will apply the Pythagoras theorem here, so we have by Pythagoras theorem we have x square is equals to 5 square plus 12 square, that is 25 plus 144, ये हो गया 169. तो x square is equals to 169 can be written as a square of 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है. दैट मीन्स x is equal to 13 meters. तो जितना पार्ट टूट के नीचे गिरा है दैट इज 13 मीटर. सो यू कैन ईजिली फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ट्री. हमसे ओरिजिनल लेंथ पूछिए, व्हाट इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. सो देयरफॉर original height of tree is equals to 5 plus x, that means 5 plus 13, ये कितना हो गया 18 meter. This is the original height of the tree, right? This will be the original height, so it is x plus 5. Okay, next question. टू पोल्स 13 मीटर एंड 18 मीटर हाई. ओके, ये हमने यहाँ पर दो पोल्स ले लिए. जो पोल ए बी है दिस इज 13 मीटर हाई एंड अनदर पोल सी डी, ये कितना हाइट का है, दिस इज 18 मीटर हाई. ठीक है, तो अब बिकॉज ऑफ इट इज़ स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, तो ये भी 13 मीटर होगा. और ये जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है सी ई, ये कितना होगा, टोटल 18 में से 13 माइनस कर दो, कितना बचा 5 मीटर, तो ये आ गया 5 मीटर. एंड नाउ इफ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, यानी इन दोनों के जो फीट है बी और डी, ये एक दूसरे से 12 मीटर अपार्ट है. सो दिस डिस्टेंस इज 12 मीटर. तो ये भी कितना होगा ए ई, दिस इज ऑल्सो 12 मीटर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. अब इनके टॉप्स क्या है, फर्स्ट पोल का टॉप ए है और सेकेंड पोल का टॉप सी है. इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस वी हैव टू फाइंड. सो लेट दिस डिस्टेंस बी x एंड बिकॉज द पोल्स आर स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, तो ये क्या है, सब परपेंडिकुलर है. Now you can easily apply Pythagoras theorem in this triangle. यहाँ पर ये triangle form हो रहा है, इससे x की वैल्यू आ जाएगी. So let the distance between their tops be x as shown in the figure. So by Pythagoras theorem in triangle AEC, triangle AEC में हम Pythagoras theorem लगा रहे हैं यहाँ पर. So square of hypotenuse, that is x square is equals to 12 square plus square of 5. तो ये हो गया 144 plus 25, that is again 169. So it can be written as x square equals to square of 13, that means x is equals to 13. तो distance क्या आ गई 13 meter. So therefore the distance between their tops is 13 meter. Answer. Next question. A ladder 13 मीटर लॉन्ग. ओके, जो ये पिंकिश पर्पल यहाँ पर हमने लिया है ए ई एंड ई सी, ये लैडर है जिस लैडर की यहाँ बात चल रही है. ये इस लैडर की लेंथ हमें दे रखी है 13 मीटर. सो दिस ए ई इज़ 13 मीटर एंड दिस ई सी इज़ ऑल्सो 13 मीटर. ओके, इट रीचेज अ विंडो. ये लैडर जो है एक विंडो तक पहुँच रही है. एट ए पॉइंट देयर इज़ द विंडो, ये विंडो है जहाँ तक ये लैडर पहुँच रही है. ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट, ये बी डी पूरी स्ट्रीट है, इसके वन साइड पे यहाँ एक विंडो है जहाँ तक ये लैडर पहुँच रही है. एंड दैट विंडो इज़ 5 मीटर अबव द ग्राउंड. तो ग्राउंड से कितना अबव है ये, दिस इज़ 5 मीटर.
कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, मतलब इस लेटर का जो फुट है ई पॉइंट पे, इसे हमने नहीं हिलाया, इसे इसी पॉइंट पर रखा। एंड द लेटर इज टर्न टू द अदर साइड, इस लेटर को हमने दूसरी साइड टर्न कर दिया स्ट्रीट के। तो जब इसे टर्न करा तो दूसरी साइड पे एक और विंडो है एट पॉइंट सी, यहाँ पर एक और विंडो है। कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट द लेटर इज टर्न ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच अनदर विंडो एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर, जो कि किस हाइट पे है, 12 मीटर। सो फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मीन्स हमें ये पूरा बी डी फाइंड करना है, दिस लेंथ। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, आई एम टेकिंग बी ई एज x and ed as y. Once we will get the value of x and y, by adding them we will get the width of the street. Total street की width के लिए हम क्या करेंगे, x और y को find out करके add कर लेंगे. So let AB and CD be the poles as shown in the figure, and let BE is equals to x and ED is equals to y. Now we are getting two triangles, so we will apply Pythagoras theorem in both the triangles. Applying this theorem in this triangle ABE, so by Pythagoras theorem in triangle ABE, what equation we will get, square of hypotenuse, that is 13 square is equals to AB square, that means 5 का square plus x का square, ये हो गया 169 equals to 25 plus x square. तो 169 minus 25 is equals to x square, ये आ गया 144 is equals to x square. 144 is a square of 12, तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 12 मीटर, ये वैल्यू आ गई x की. नाउ वी विल अप्लाई द सेम थ्योरम इन द सेकेंड ट्राइंगल, सो आई एम राइटिंग हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल EDC. This one we are applying Pythagoras theorem in this triangle. So what we get, hypotenuse square, that is 13 square is equals to 12 square plus y square. So 13 square is 169 is equals to 144 plus y square, or we can say y square equals to 169 minus 144, ये आ जाएगा 25. तो y square is equals to 5 का square, that means y is equals to 5 meter. So we got the value of x and we got the value of y. We can find the width of the street by adding them. So therefore width of street is equals to x plus y, that is 12 plus 5, that is 17 meter. Answer. Okay, so question of the day is, what are Pythagorean triangles? If you know the answer, do let me know in the comment box and try on more questions based upon the Pythagoras theorem. Take care. Bye bye.